واسطہ بنتا چلا گیا، حرف سوال واسطہ بنتا چلا گیا، حرف سوال واسطہ بنتا چلا گیا، پھر یوں ہوا کہ راستہ بنتا چلا گیا، حرف سوال واسطہ بنتا چلا گیا، پھر یوں ہوا کہ راستہ بنتا چلا گیا، اور ایک واقعہ ہوا کہ محبت ہوئی ہمیں، ایک واقعہ ہوا کہ محبت ہوئی ہمیں، پھر واقعے سے واقعہ بنتا چلا گیا، ایک واقعہ ہوا کہ محبت ہوئی ہمیں، پھر واقعے سے واقعہ بنتا چلا گیا، جہاں دھیرے دھیرے ذات سے مانوس ہو گئی، جہاں دھیرے دھیرے ذات سے مانوس ہو گئی، دل رفتہ رفتہ آئینہ بنتا چلا گیا، جہاں دھیرے دھیرے ذات سے مانوس ہو گئی، جہاں دھیرے دھیرے ذات سے مانوس ہو گئی، دل رفتہ رفتہ آئینہ بنتا چلا گیا، دل رفتہ رفتہ آئینہ بنتا چلا گیا، ظفر صاحب رفتہ رفتہ آئینہ بنتا چلا گیا، اور کوئے بتا سے کون سی نسبت کسی کو تھی، کوئے بتا سے کون سی نسبت کسی کو تھی، جانے لگے تو سلسلہ بنتا چلا گیا، کوئے بتا سے کون سی نسبت کسی کو تھی، جانے لگے تو سلسلہ بنتا چلا گیا۔ قفس احساس ہے وامات گانے آہوزاری کا، قفس احساس ہے وامات گانے آہوزاری کا، سواد شام ہجرہ ہے علاقہ بے قراری کا، قفس احساس ہے وامات گانے آہوزاری کا، سواد شام ہجرہ ہے علاقہ بے قراری کا، اور ہماری راز گوئی غیظ بیجا کا سبق ٹھہری، ہماری راز کوئی غیظ بیجا کا سبق ٹھہری، تعلق حق پرستی سے رہا ہے سنگ والی کا، ہماری راز کوئی غیظ بیجا کا سبق ٹھہری، ہماری راز کوئی غیظ بیجا کا سبق ٹھہری، تعلق حق پرستی کا رہا ہے سنگ والی، تعلق حق پرستی سے رہا ہے سنگ والی کا، اور گما کیا کیا تھا انسان کو مگر یہ کار ناممکن، گما کیا کیا تھا انسان کو مگر یہ کار ناممکن، بہائم کے سبب ممکن ہوا مردم شماری کا، گما کیا کیا تھا انسان کو مگر یہ کار ناممکن، بہائم کے سبب ممکن ہوا مردم شماری کا، سواد شام ہجرہ ہے علاقہ بے قراری۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بیاسی کو الٹ بنایا، صحیح جگہ رکھ دیا، صحیح جگہ رکھ دیا۔ اس مئی سے اور اس محبت سے، اس ارادے اور اس جنون سے 1954-55 کے آس پاس سے یہ محفل سجا رہے ہیں۔ آپ کے عروج کو سلام کرنا دل چاہتا ہے، جتنے لوگ بھی یہاں آپ کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، کچھ سال سے لے کر 20 سال تک ان شاء اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی سال اللہ آپ کے دراز کرے، آمین۔ شعر میں سنانے کا اب تو من نہیں کرتا تھا، کبھی کبھی شک ہو جاتی، خیر بدل میں یوں سناتا ہوں کہ یہ جو آندھی سی سرے شام چلا کرتی ہے، یہ جو آندھی سی سرے شام چلا کرتی ہے، یہ جو آندھی سی سرے شام چلا کرتی ہے، رات میں دیر تلک گرد ہوا، رات میں دیر تک یہ جو آندھی سی سرے شام چلا کرتی ہے، رات میں دیر تلک گرد ہوا کرتی ہے،
और जिस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं समझा मैंने, जिस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं समझा मैंने, वो मोहब्बत ही मेरे हाथ में दुआ है। क्या कहने जिस क्या मोहब्बत को शाइस्तगी है मोहब्बत साहब, नहीं क्या समझा, शाइस्तगी है। जिस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं समझा मैंने, वो मोहब्बत ही मेरे हक में दुआ करती है। किस महाजन से कभी कर्ज लिया था मैंने, किस महाजन से कभी कर्ज लिया था मैंने, जिंदगी आज तक सूद अदा। वाह 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 किस महाजन से कभी कर्ज लिया था मैंने, किस महाजन से कभी कर्ज लिया था मैंने, जिंदगी आज तक सूद अदा करती है। और इसने देखा है तुझे दूर के जाने वाले, इसने देखा है तुझे दूर के जाने वाले, घर की दहलीज तेरी राह लगा। इसने देखा है तुझे दूर के जाने वाले, घर की दहलीज तेरी राह लगा करती है। बस गर्द पैरों में तो माथे पर शिकन होती है, गर्द पैरों में तो माथे पर शिकन होती है, दिल के कमरे से जो मित्रों को गुजर, गर्द पैरों में तो माथे पर शिकन होती है, दिल के कमरे से जो निकलूं तो घुटन होती है। दिल के कमरे से जो निकलूं तो घुटन होती है, गर्द पैरों में तो माथे पर शिकन होती है, दिल के कमरे से जो निकलूं तो घुटन होती है। ये सुने कि रात भर कौन से सहरा में सफर करता हूँ, रात भर कौन से सहरा में सफर करता हूँ, सुबह उठता हूँ तो आंखों में वाह 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 रात भर कौन से सहरा में सफर करता हूँ, रात भर कौन से सहरा में सफर करता हूँ, सुबह उठता हूँ तो आंखों में जलन होती है। तो शेर सुने के लब पे आते ही गुलाबों की महक आती थी, लब पे आते ही गुलाबों की महक आती थी, अब उसी नाम से सीधे में लब पे आते ही गुलाबों की महक आती थी, अब उसी नाम से सीने में घुटन होती थी। लब पे आते ही गुलाबों की महक आती थी, अब उसे नाम से सीने में घुटन होती है। और शेर देखें कि एक वो दौर के मीलों का सफर होता था, एक वो दौर के मीलों का सफर होता था, अब तो दो गांव में चलो तो एक वो दौर के मीलों का सफर होता था, एक वो दौर के मीलों का सफर होता था, अब तो दो गांव में चलो तो खत्म होती है। लब पे आते ही गुलाबों की महक आती थी, अब उसी नाम से क्या बात है सर, क्या बात है। वो जवाब नहीं। सुबह उठता हूँ रात भर कौन से सहरा में सफर करता हूँ, कमरे से सुबह उठता हूँ तो आंखों में जलन होती है। ये थे जनाब इरफान जाफरी, ये बैगाने नजर था, नजर आ लिबास मजाज में, कभी आए हकीकत मुंतज़िर, नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे नगरी जमीन नियाज में। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज पर है निगाह आईना साथ में। जनाब शबीर वाह वाह एक आपसे दरखास्त करूंगा, ये शायर है मैडम हमारे सरपरस्त ये जरूरी भी नहीं है।
शरीक हयात की साजिश करके दवाइयाँ बता रहे हैं आमीन का चाहिए दीदी दी में लम्हा लम्हा खुदा खुदा रब्बी लम्हा लम्हा खुदा खुदा रब्बी इस पर रोज़े हिसाब क्या रहा लम्हा लम्हा सचमुच आमीन लम्हा लम्हा खुदा खुदा रब्बी इस पर रोज़े हिसाब क्या रब्बी क्या दुआ के लिए उठाएं हाथ क्या दुआ के लिए उठाएं हाथ आसमां सर पे गिर पड़ा रब्बी क्या दुआ के लिए उठाएं हाथ आसमां सर पे गिर पड़ा रब्बी मुझसे रोज़े हिसाब रहने दे मुझसे रोज़े हिसाब रहने दे जिंदगी दे चुकी मजा रब्बी मुझसे रोज़े हिसाब रहने दे जिंदगी दे चुकी मजा रब्बी अब शराफिल सुर क्यों भूखे अब शराफिल सुर क्यों भूखे सर से महशर गुजर गया रब्बी अब शराफिल सुर क्यों भूखे सर से महशर गुजर गया रब्बी मौत चखले तो भूल जाए सब मौत चखले तो भूल जाए सब जो मजा हमने चख लिया रब्बी मौत चखले तो भूल जाए सब जो मजा हमने चख लिया रब्बी अब तो रोबोट बन गए हैं रब वाली गजल गई अब तो रोबोट बन गए हैं बाप ने तबस्सुम न कहेगा रब्बी अब तो रोबोट बन गए हैं बाप न तबस्सुम न कहेगा रब्बी क्यों सुखन पर से बुग़्ज़ रखते हैं क्यों सुखन पर से बुग़्ज़ रखते हैं सब असीराने काफिया रब्बी एक गजल और जोर है क्या कह रहे हैं क्यों सुखन पर से बुग़्ज़ रखते हैं असीराने काफिया काफी चल रहा है बात भी बोलूंगी काफी तो जा चुके हैं कुछ बैठे हैं भाई और समाज बताओ सर हवा शरीर भी सरकश भी तार हूँ मैं हवा शरीर भी सरकश भी तार हूँ मैं बचा सके तो बचा तेरा तार हूँ मैं हवा शरीर भी सरकश भी तार हूँ मैं बचा सके तो बचा तेरा बाग हूँ मैं अपने गांव का चेहरा भी हूँ बसीरत भी मैं अपने दौर का चेहरा भी हूँ बसीरत भी दो इंतशार की अगार हजार हूँ मैं अपने दौर का चेहरा भी हूँ बसीरत भी वो इंतशार की अगार है हूँ मैं बड़ी अजीब सी लज्जत से हम तनाब हूँ मैं बड़ी अजीब सी लज्जत से हम तनाब हूँ मैं अभी चट्टान था अक्सर अभी जुआर हूँ मैं वो तजुर्बा हूँ जो इज़हार को तरसता हो वो तजुर्बा हूँ जो इज़हार को तरसता हो हर इंकिशाफ के रास्ते में इंतजार हूँ मैं रहू न तू के गली में तो बात मत पूछो रहू न तो की गली में तो बात मत पूछो हाँ इंतजार के पूछो मैं खास्ता हूँ मैं रहू न तो की गली में तो बात मत पूछो जानते हैं रहू न तो की गली में तो बात मत पूछो हाँ इंतजार के पूछे मैं खास्ता हूँ मैं वो तंतन है तो सरे राज में पूछे जिनका गला चलता है जिनका गला चलता था बेचारे बैठे हुए हैं वो यहाँ नहीं बैठे हुए वो तंतन है तो सरे राज में खुश है यहाँ ये हाथ के मंदिर पे देखकर आगो में खबर तो ये है कि तेरे कर्म की हदी नहीं कर्म तो ये है कि तेरे कर्म की हदी नहीं जरा बताओ तो सही किसका इश्तिहार में वाह 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 मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे घर पे निहाल लिए ये जनाब शबीर अहमद फराज अब मैं जिनको आवाज देने जा रहा हूँ मेरे अलावा को शेर सुनाना चाहता हूँ अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं ये आशिक कौन सी बस्ती की यादत बुलाती है मुझे रातों को
बुलाती है मुझे रातों को खामोशी सितारों की, निराला इश्क में मिला निराले के नाले हैं जनाब जमीन और सब। जो जी चाहे मेरी वो फेवरेट वाली तो जरूरी है, जो भी चाहिए जो चाहिए पढ़े। दुआ सलाम के बगैर तो बात नहीं बनी। एक सवाल फेवरेट दुआ सलाम के बगैर अच्छा वो हर एक सबसे इसका है वो हर एक अच्छी तरह से जाकर वाह 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 सहरा की कुछ भी हो लेकिन वाह 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 क्या बात क्या बात साए की थी उम्मीद हमें साए की थी उम्मीद हमें साए की थी उम्मीद हमें सत्रों पेड़ की कोड़ालियां जिंदाबाद जिंदाबाद और जो होगा उनसे और जो होगा वो देखा वो भी देखेंगे वैसे क्या कुछ नहीं हुआ क्या बात है वाह वाह हस्बे हाल है सर वाह वाह हाल है वाह 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 शक्ति भाई बिट्टू क्या बात है भी शेर भाई बिट्टे और दोस्तों का ऐसा बड़ा है क्या वाह 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 दोस्तों हाँ जल्दी में अरे क्या सारे तो वाह 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 अल्लाह सुभान निकाल लो पहले निकालो पहले वाह वाह अगर अल्लाह सलामत रखे आपको। तो ऐसी राह से गुजरो जो राह यहाँ लेकिन तरन्नुम से हुजूर अच्छा मतला खाली तरन्नुम से पढ़ जमील साहब आप सुना दीजिए, खाली मतला पढ़ सुना दीजिए, सुना दीजिए। अरे यानी ये रुतबा पोतों का होता है कि किस तरह से शेर का ये है सही ज़्यादा पढ़ेंगे लेकिन अरे आप कर लें अगर ये देखें बड़ी पुरानी बात करेंगे तो क्या करेंगे ठीक है, गाना 100 साल पुरानी थोड़ी है। चाहे बड़ा थोड़ी होता ये जिक्र है कि मुझसे दुआ सलाम ना हो ये जिक्र है कि मुझसे दुआ सलाम ना हो तो ऐसी रात गुजरो राम ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान सब का मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों वाह वाह जी निगाहों से हकीर निगाहों से देखने वालों अल्लाह तुम्हारा भी ये मकाम वाह 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 हुजूर इश्क में तकलीफ खास आम न हो क्या बात है हुजूर इश्क में तकलीफ खास आम न हो दिलाओ दिल में कटी हराम वाह 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 सुभान अल्लाह वाह वाह बहुत खूब वाह वाह के खास आम न हो दिलाओ दिल में कटी हराम इलाही खैर के उनका सलाम आया है वाह उनका सलाम आया है यही सलाम आखिरी सलाम वाह 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 जमीन उनसे तारुफ हो गया लेकिन जमीन उनसे तारुफ हो गया लेकिन उनके बाद किसी से दुआ करो
और पढ़ दीजिए मतला एक बार और अगर ये सुने अगर क्या पढ़ते आज भी वैसे ही पढ़ रहा है हुजूर बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूँ आप में मैं भी जाता आदमी जवाब दे हुजूर जवाब अगर दिल है इनसे दुआ सलाम ना हो, अगर ये दिल है कि मुझसे दुआ सलाम ना हो, तो ऐसी रात भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप हजरात का और तमाम मुस्लिम का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया और सागर साहब रिजवान जाफरी साहब हमारे खास तौर पर हमारी जमीन में खड़ा था। ये कहाँ आने वाले बड़े आपकी खातिर सरकार मैं बेचारे सुनता भी नहीं शुक्रिया अदा करता हूँ पहले से। हमने अपने आज के मीरे कारमा जनाब सागर भाई साहब के साथ आइए आशीर्वाद तो ले लिया आपके साथ नहीं बदगी कारवा के ठहरो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ रामायण में एक किस्सा ये आता है कि रामचंद्र जी जब वनवास गए तो भरत ने पूरा राजकाज उनकी खड़ाम से चलाया। तो मुझ तिफ्ते मकतब को सोचिए, मैं खुद ही आज अपनी तकदीर पे नाज़ा हूँ कि आली मर्तबत जमील मुनस्सरपुरी साहब की सदारत जहाँ होती है, मैं बच्चों की तरह वहाँ जाके जाजिम और फर्श होता हूँ। और आज उनका ये हुक्म था कि नाचीज को बुलाकर मसनद सदारत पे, हालांकि उसके दो फायदे हमको हुए। एक तो बरामद होने का मुझे फायदा मिला है और कम हो गए 66 साल की उम्र में इस तरह की चीज़ें अच्छी भी लगने लगती हैं। आइए ये बालिका बज़्म जो आपने सजाई है, पहली बात तो अब्बा हुजूर शुक्रिया, सत शुक्रिया, क्योंकि ये अदब के मुहाफिज हैं, अदब के अलमबरदार हैं, अदब के सरपरस्त हैं। ये वो कदीमी शादाब शजर हैं जिनकी शाख पर हमने झूला झूलना सीखा है, अदब की वो पेंगे हमने मारी हैं और इन्हीं की शाख के नीचे, इन्हीं के साए में बैठकर इन्हीं के कदमों से हमने शेर व सुखन की सलाहियत भी हासिल की। तो रिवायत के से हट के मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से इनकी लंबी उम्र के लिए हमारे लिए बात जब अल्लामा इकबाल की आती है तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लामा इकबाल के किसी मिसरे पे गिरह लगाना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपको हुक्म दे दिया जाए कि कोहिनूर को आप नए ढंग से तराश दीजिए। कोहिनूर को इससे बेहतर तराशा जा नहीं सकता, तो तराशने वाले के हाथ से उसको खमियाजे ही भुगतने पड़ते हैं। हालांकि अक्टूबर में भी अल्लामा इकबाल का यौम इकबाल को जश्न मनाया गया, तो उसमें मुझ तिफ्ले मकतब को माहिर इकबालियात के तौर पर क्यों बुलाया गया मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। बर्रे सबीर से 27 बिल्कुल समझे कि आदमी शोहरत याफ्ता शख्सियत फरमाती है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सबका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि सब होने का एक ये फरीजा पूरा करना ही पड़ता है और आप जैसे बारकार लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। 25-50 हज़ार की भीड़ में शेर पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन आप और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो मैं महाराष्ट्र की उस धरती पे हूँ, खासकर मुंबई में सलीम भाई वहाँ का रहने वाला हूँ, कि जहाँ चारों धाम अदब के हैं। इसी सरजमीन में अदब के चारों धाम है। हमारे यहाँ अदब के 4 धाम हैं।
धर्म के 4 धाम है, और गजब के 4 धाम जिसमें पहला स्थान जो है वो मुंद्रा का है, गोवंडी का है, मालवनी का है। ये एक सादत की बात है। और सारी दुनिया जानती है कि जोगेश्वरी का वो इलाका जो मुनक्किल इलाका माना जाता है। आइए अल्लामा इकबाल के हवाले से चंद किताब। हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि शेख अब्दुल कादिर साहब ने उनके बारे में एक कमेंट पास किया था सर, जो मैंने एक ऐसी बावकार शख्सियत के मुंह से सुना था। आपको इसलिए मैं ये थोड़ी सी तमीज़ बात रहा हूँ कि मैं इतना बदकिस्मत इंसान हूँ कि आज के करीब 20 साल पहले लंदन में मेरे अपने घर में मेरा कमरा थोड़ा सा बड़ा था, एक ज़्यादा बड़ा, वहाँ बेड अलग से था। वालिद मोहतरम का हुक्म हुआ, एक आदमी रोज देर रात को कब आता था ये तो नहीं मालूम, 2-2:30 बजे आता था, दोपहर को 12-1 बजे तक सोता रहता था। मैं बड़ा परेशान था क्योंकि बड़ी मुश्किल से अस्सलाम वालेकुम करके कभी निकल गए तो निकल गए, और कुछ मैनोशी का शौक भी था उनको। 39 दिन साथ रहने के बाद इरफान भाई कभी मैंने पता नहीं आपसे इसका जिक्र किया नहीं, मुझे भाई से किया भी है। 20 साल बाद एक दिन मुझे पता चला कि वो आदमी जो 39 दिन तक मेरे साथ सोया था वो जॉन एलिया था। आज भी मन करता है कि मैं आंसुओं से उसके पांव धोता, अपनी पलकों पे बिठाता, उस नायाब हीरे को देखता, लेकिन मैंने तो उनको एक बड़े आम इंसान की शक्ल में देखा था लंदन में। तो उसी तरह से अल्लामा इकबाल के बारे में शेख अब्दुल कादिर साहब ने कहा था कि अगर पुनर्जन्म का मैं कायल होता तो बड़े हक से ये कह देता कि अदब की पैमाइश में गालिब जिस जगह जाने से रह गए थे तो सियालकोट के किसान के घर में इकबाल की उनकी रूह जो है इकबाल के जिस्म में आई है, और वो इस धरती पर पहुंच गए। मुझे लगता है इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दुनिया में किसी को दिया नहीं जा सकता। इकबाल साहब के हवाले से चंद किताब में ये भी मेरी तिफल मकतब काविश है। जानबूझ के यहीं से शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि कौम को बादए खुदी बख्शी, कौम को बादए खुदी बख्शी और चश्मों को रोशनी बख्शी, कौम को बादए खुशी बख्शी और चश्मों को रोशनी बख्शी। बिल यकीन तूने शायरे मशरिक मुर्दा रूहों को जिंदगी बख्शी, मुर्दा रूहों को जिंदगी बख्शी। साहिब यकीन साहिबे कल्बो नजर कहाँ, साहिब यकीन साहिबे कल्बो नजर कहाँ, हालाते मुल्को कौम से हैं बाखबर कहाँ। दीदावरी के दावे तो लाखों को हैं मगर इकबाल जैसा आज कोई दीदा। दीदावरी के दावे तो लाखों को हैं। जब उनकी तख्लीक पे कभी ऐसा जहन जाता है कि मांगे दिरा है, ज़र्वे कलीम है, माजिद जिब्रील है। मांगे दिरा जब हम पढ़ रहे थे तो शिकवा जवाब शिकवा जहन में कई बार घूम रहा था। ये पिता उनकी नज़र है खराज अकीदत के तौर पर कि शिकवा भी उस पर जवाब शिकवा। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे 3 बच्चों ने मुझ पर हिंदी में PhD की है। पिछले वर्ष मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। मनोवर रहमान साहब ने लौटा दिया, मैंने संभाल के रखा है। जो बात कहना चाहता हूँ, इकबाल साहब को जब आप पढ़ने लगिए तो तसव्वुफ की ऐसी परतें वो खोलते हैं। हमें नहीं मालूम कि मैं तो उर्दू का एक अदना सा तालिब भी नहीं कह सकते मुझे, लेकिन शनि लोग, देव लोग, वो लोग ऐसी जगहों पे उनका सफर होता है। और जब वो जवाब तलब करते हैं, खुद भगवान से वो जवाब तलब करने लगते हैं, तो मेरा ये पिता खराज अकीदत के तौर पे है कि शिकवा भी उस पर जवाबे शिकवा भी कौन कर सकता है उसकी हमसरी। शिकवा भी उस पर जवाबे शिकवा भी कौन कर सकता है उसकी हमसरी। कह दिया शायर ने बासत एहतमाल,
شاعری جزویست از پیغمبری، شاعری جزویست از پیغمبری، خوش فکر نہیں آیا، خوش آثار نہ آیا، اب تک کوئی اذہان کا معمار نہ آیا، آنے کو تو آئے بہت اردو کے سخنور، اقبال سا کوئی فلک افکار نہ آیا۔ خاص طور پہ یہ چار مصرے کہ بتاؤ نہ تم دل انہیں جانتا ہے، بتاؤ نہ تم دل انہیں جانتا ہے، دماغ ان کے افکار کو مانتا ہے، برہمن تھے وہ بھی، برہمن ہے ہم بھی، برہمن برہمن کو پہچانتے ہیں، برہمن تھے وہ بھی، برہمن ہے ہم بھی، برہمن برہمن کو پہچانتا ہے۔ میں بہت فخر کے ساتھ ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ جس بچے کو میں نے بہت چھوٹی عمر میں، اس سے میں نے سیوائیں بھی بہت خوب لی، اس کو چاکلیٹ کھلایا ہے، وہ میرے دوست کا بیٹا ہے جس کا نام محترم عبید اعظم اعظمی ہے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، بہت چھوٹے سے بچے تھے، لیکن جو ان کی میٹیریالک رائز ہے ادب میں، جو معیار ہے ان کا، اللہ شاہد ہے کہ ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں تو جب ان کا ذکر چڑھتا ہے تو پہلے سے ہی مان لیا جاتا ہے کہ ایک ایسی منفرد صف ہے جس میں عبید بھائی رہتے ہیں۔ اکثر ان کو بارہ میں پریشان کیا کرتا ہوں جہاں ادھر جاتا ہوں، ایک ان کی نظر سے یہ گزرا ہوا مصرع ہے کہ احساس کی شدت کو سلامی ساگر، احساس کی شدت کو سلامی ساگر، جذبات کی ندرت کو سلامی ساگر، اقبال نے کنجشک کو شاہین کیا، اقبال نے کنجشک کو شاہین کیا، اقبال کی عظمت کو سلامی ساگر۔ حالانکہ میں نے ان کے اوپر سارے جہاں سے اچھا ہندوست کا ہمارا میں نے جسارت بھی کی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر وقت تھوڑا سا کم ہے، اجازت دے تو دو چار مختلف اشعار آپ کے سامنے ہیں اور میری حاضری بھی مکمل ہو جائے گی۔ نواز آپ کی محبت سے ہیں کہ آگہی کی آس میں اس لیے خاص طور پر یہ اشعار آپ کو ہم سنانا چاہتے ہیں کہ اللہ شاہد میرے لیے میں بطور زیارت میری یہاں حاضر ہوتی ہے، اور یہ سعادت بڑی مشکل سے ملتی ہے کہ آگہی کی آس میں الہام تک بیٹھا رہا، آگہی کی آس میں الہام تک بیٹھا رہا، فکر لا حاصل کہ میں انجام تک بیٹھا، آگہی کی آس میں الہام تک بیٹھا رہا، فکر لا حاصل کہ میں انجام تک بیٹھا رہا، ایک تنہا سچ لیے میں شام تک بیٹھا کہ آگہی کی آس میں الہام تک بیٹھا رہا، فکر لا حاصل کہ میں انجام تک بیٹھا، بس دکا کے کھولتے ہی جھوٹ سارے بک گئے، ایک تنہا سچ لیے میں شام تک بیٹھا۔ ایک مطلع ایک شعر دیکھیں کہ خاص طور سے میں بہت پریشان آپ کو کرتا ہے لیکن بچوں کی مسکراہٹ ہے نصیب، بے ضمیر اٹھے اور اٹھ کے میرے در تک آ گئے، بے ضمیر اٹھے اور اٹھ کے میرے در تک آ گئے، جرم ناکردہ کے بھی الزام سر تک آ گئے، جرم ناکردہ کے بھی الزام سر تک آ گئے، میں نے اپنی موت کی افواہ پھیلائی کہ بس کیسے کیسے دعوے لے کے لوگ گھر تک میں نے اپنی موت کی افواہ پھیلائی کہ بس کیسے کیسے دعوے لے کے لوگ گھر تک آ گئے، مسئلہ پل پل تیری یادوں کی گویائی سے ہے، مسئلہ پل پل تیری یادوں کی گویائی سے ہے، مجھ کو سارا ڈر مسلسل میری تنہائی سے، اور شکر ہے تسلیم میرے کارواں نے کر، شکر ہے تسلیم میرے کارواں نے کر لیا، راہ کی پہچان میری آملہ پائی سے، شکر ہے تسلیم میرے کارواں نے کر لیا۔ یہ چار مصرے خاص طور پر ابھی سعودی سے آئے ہیں اور وہاں کے
सऊदी गैजेट में अगले दिन आ गया था, खास तौर से सौगात के तौर पर, कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चश्मा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकव। एक तो काबा की दीवार पे जो चश्मा, दूसरा आका ने बांधा जो शिकव। अब आप मुझे हुक्म ने एक गजल सुनाओ या माँ के हवाले से कुछ शेर पसंद है? दोनों भी सुनाइए। दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया। क्योंकि जिस शेर से मैं आगाज करने जा रहा हूँ, इसमें आया कौम के अलावा दूसरी कौम उस वज़न का मतलब ही नहीं कि कम से कम एहतियातन मैं वज़ू तो कर ही लेता हूँ, कम से कम एहतियातन मैं वज़ू तो कर ही लेता हूँ। कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे माँ के हवाले से, और दिया जलने से पहले शाम को घर लौटा। अच्छा, मेरी सचमुच की उम्र 66 साल है, मेरी माँ 96 साल की है, और इतनी सेहतमंद और खूबसूरत है कि देखने में मधुबाला से भी छोटी है। आजकल मुंबई आई हुई है, और शेर सुनिए, सच्चा शेर सुनिए कि मैं 66 साल का बूढ़ा कभी जब काम करता हूँ, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगा, और करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफ़े में मेरी माँ का मेरे सीने से, मेरे चेहरे पे लिखी हर इबारत को समझती और नहीं पाती, मेरे चेहरे पे लिखी हर इबारत को समझती है, मगर माँ ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं। करिश्मा है कि जिस बेटे के घर माँ रहने लगती है, दुआ बरकत से उस घर की कमाई बढ़ती है। शेर खास तौर पर सुनिए कि ये शेर इरफान जाफरी साहब को खास तौर से इसलिए नजर कर रहा हूँ कि बड़ी मासूमियत से उनके ऊपर एक तहमत लगा रहा हूँ। अगर ना कर सके तो हाथ उठा दीजिएगा कि बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे में लूटा है, बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे में लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं माँ के खजाने। अब शेर सुनिए कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उठाया, जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका। एक मंजर कशी का शेर देखिए कि मैं गाँव गया, माँ घर पे नौकर नौकरानियों की फौज है, लेकिन माँ एक हाथ में कुछ खाने का सामान और एक हाथ में चाय लेकर के मेरे घर से बैठक थोड़ी दूर है, धीरे धीरे चल रही, तो मैं इस डर के मारे सांस रोक के खड़ा हो गया कि मैं बोलूंगा भी माँ गिर जाएगी, और वो चाय और लेके आए, और मेरा शेर यूं बन गया कि ज़ईफ जिस्म के कांधे पे कायनात ली। 96 साल की उम्र में उसको फिक्र दी कि ज़ईफ जिस्म के कांधे पे कायनात लिए, देख कदमों तले जन्नत लिए माँ आती। मेरी माँ की चिंताएं आप 2-3 अशार में सुन लें कि गांव में छप्पर के ऊपर लौकी होती, गिर जाए तो सूख जाती, माँ की चिंता है लौकी। अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी, कहीं पानी नहीं बरसा तो क्या नहीं सूख जाएगी। बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। दिया दहलीज पर हर शाम माँ को ही जलाना है, हर एक बच्चे की आंखों में उसके काजल लगाना है। हमारे यहाँ हामिला गाय जब बच्चे देते तो उसको बियाना बोलते हैं। हर एक बच्चे की आंखों में उसे काजल लगाना है। किया फिर मुल्तवी अम्मा ने अपना शहर का जाना, पियाई गाय को कुछ दिन हरा चारा। ये मेरी माँ की मुझे कमक कहती है, बहुत कच्चा समझती है।
मगर हर बात में ईमान मुझे सच्चा समझता। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी ईमान मुझे बच्चा समझता। आखिरी शेर इसलिए खास तौर पर कि ये इस बार सऊदी के 12 अखबारों में आपको आया और तशरीह में जो उन्होंने जाविया निकाला वो मैं जब मैंने शेर कहा था तो उस जाविये से मैं वाकिफ नहीं था। शेर ये देखें, और मैं जानता हूँ कि अपनी जिंदगी में इससे बेहतर शेर अब मैं नहीं कह पाऊंगा। शेर देखें आप कि बशर की छोड़िए सरकारी दो आलम में परखा है। अब आप तय करते हैं जिस चीज को सरकारी दो आलम परखने कोई दलील उससे आगे कहाँ दी जा सकती। बशर की छोड़िए सरकारी दो आलम ने परखा है, दवा से कुछ न हो माँ की दुआ तक काम है। दवा से कुछ माँ की दुआ 6-7 शेर की आखिरी गजल अगर वो नहीं एक गजल आपने और खास तौर से आप सबके लिए है, कहाँ कहाँ दबकर झिझक कर बोलता है, ये मेरे लिए कहाँ दबकर झिझक कर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है, और मुझे मेरे हुनर की दाद दीजिए, तराशू मैं तो पत्थर बोलता है। और ये शेर खास तौर से अब्बाहुजूर की नजर है कि खुदा तौफीक दे जिसको वो समझे, खुदा तौफीक दे जिसको वो समझे, इशारों में कलंदर बोलता है। एक तसव्वुफ का शेर देखें कि पटकती हैं जो सर साहिल पर मौजे, पटकती हैं जो सर साहिल पर मौजे, न जाने क्या समुंदर बोलता है, और घटा लेता है खुद ही कद्र अपनी जो अपने कद से बढ़कर। अब ये 2 शेर इस नायाब कौम के हवाले है कि सदाकत जब कभी आती है रौ में, सदाकत जब कभी आती है रौ में तो सर नेज़े पे चढ़कर, सदाकत जब कभी आती है रौ में तो सर नेज़े पे चढ़कर बोलता है। इसी कबीर में एक शेर देखे, सैयद घराने का परिंदा है कबूतर कि बलाएं दूर होगी मेरे घर से, बलाएं दूर होगी मेरे घर से, मेरी छत पे कबूतर और नई तहरीक मिलती है खिरत को जुनू में जब सुखनवर को। मक्ता खास तौर से इस पद की नजर है कि कोई माने न माने उसकी खुदा लगती तो सागर बोलता है। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर ममनून हूँ, लेकिन ये काफी नहीं होगा। कबीर मुस्तफी साहब हमारे वालिद का दर्जा रखते हैं, हमने उनके कदमों में बैठकर अदब के ना जाने कितने हुनर सीखे हैं, और करार साहब का आना इस पद में सोने में सुहागा वाली बात है। चलते चलते एक छोटी सी पोल अपने भाई इरफान जाफरी साहब की खोलता चलूं, जो मुझे नींद नहीं आएगी, बड़ी मुश्किल से आते हैं। बुरहानपुर के मुशायरे में हम गए, ये दोहा से लौट के आए थे, बेशुमार इनको तालियां मिली, बेशुमार दादो तहसीन से नवाजे गए जब भी पढ़े। एक बुजुर्ग हजरत मोहम्मद भाई उठे और खड़े हुए कि क्या आप मोहतरम ऐसर जाफरी साहब के साहबजादे हैं? तो इन्होंने डरते डरते बड़े धीरे से सर हिलाया, तो बोले आपको क्या आपको उनकी कोई गजल याद है? तो इन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं तो पहले हाथ उठा के खड़ा हो गया कि मैं मुरीद क्या जानूं। तो इन्होंने जब हाँ किया तो उन्होंने कहा कि 13 जून 1968 को हजरत यहाँ आए थे, उन्होंने ये गजल सुनाई थी, आपको ये गजल याद है? याद है। ये गजल सुनाना शुरू किए, वो 13 तारीख को जब आए थे तो 13 शेर की वो गजल थी, 9 शेर पे भाई याद अटक गए, 10वां शेर यहाँ से ही आना। बड़ी मेरी तरफ इन्होंने देखा तो मैं तो पहले से ही हाथ उठाए खड़ा था। आप यकीन करेंगे कि मुरीदों का आस्थाना क्या हो सकता है। सुखनवर का और बड़े बड़े असातिज़ा के आस्थाने हमने देखे, लेकिन मुरीद का आस्थाना मैंने देखा। मोहम्मद भाई 75 साल के बुजुर्ग पूछे खड़े हुए और बाकी 4 शेर इनको सुना दिया। तो आज के 40 साल पहले जब न कोई मोबाइल था न कोई लिखने की रस्म थी, 40 साल पहले पूरे 13 के 13 शेर हमको याद
सकते। जोरदार तालियां भाई जान का इस्तेमाल करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का तक किसी से रहीम भाई शुक्रिया अदा करें आप उर्दू अदबी आलिया की तरफ से। हाँ बैठे हुए हैं, इत्तेफाकन इसीलिए मैंने उनको आवाज़ दी कि आप आए, वरना वो इतनी देर तक बैठे। नज़र साहब आप सभी को उर्दू अदबी आलिया की जानिब से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी देर तक समर्पित और रौनक बख्शी। आज के जलसे और मुशायरे का इख्तिताम को मैं ऐलान करता हूँ। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आइंदा साल इसी कमतराब के साथ हम ये जश्न फिर मनाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरा दौर नहीं चलेगा, चलवाना है।